Hello everyone, welcome to my channel Mission Science, and today I am going to discuss three topics. So let's start with the topic that is charging by induction. In my previous video, I discussed about that how charging will takes place by the process of conduction. Conduction means actual contact. When we bring two bodies in actual contact with each other, then how transfer of charges will takes place. But in my today's video, I am going to discuss that if there is no actual contact between two bodies, but still there is a transfer of charge takes place. And this process is known as charging by induction. If there is no contact between two bodies. So let us explain with the help of an example. Let us consider a spherical ball. Initially, this ball is uncharged. There is no charge on this sphere. Now, if we bring a glass rod near to this sphere, which is positively charged, this we already know. I already told in my previous video that glass rod, it is a positively charged. Now we know that this is a metallic sphere. If it is a metallic sphere, that means it has free electrons. So this positive charge, it will attract the free electrons of this sphere towards itself. That means this left hand side of the sphere, it acquires a negative charge. Now see that as we know that this sphere, it has a number of free electrons. Now as the left hand side of this sphere acquires a negative charge, now it will repel the electrons. Because we know that like charges repel each other. That's why the right face of this sphere, it will get a positive charge. This is the second case. Now let us consider that in the third case, if we do the earthing of this sphere, let us suppose we do the earthing of this sphere. First of all, let's understand the concept of earthing. अर्थिंग और वी कैन से ग्राउंडिंग क्या होता है. देखो, आपको पता होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, मेटालिक बॉडीज़ होती हैं, उन सब की क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है. वो कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, घर के बाहर क्या है, अर्थ के अंदर जितने भी वायर्स हैं उन सबको डालते हैं, सो दैट जितना भी पोटेंशियल होगा, करंट होगा, वो सारा कहाँ चला जाएगा, हमारे अर्थ में चला जाएगा. ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ वायर्स होती हैं हमारे पास. एक हमारे पास लाइव वायर होती है, एक हमारे पास अर्थिंग की वायर होती है. तो ये जो वायर्स हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं, जो अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि लाइव वायर की बात करती हूँ, लाइव वायर क्या कर रही है, करंट फ्लो करवाती है. अर्थ वायर क्या करती है कि जितना भी करंट है उसको अर्थ में ट्रांसफ़र करती है. ऐसी एक और वायर होती है, दैट इज़ न्यूट्रल वायर. इसमें भी सेम, ये भी हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल होती है. देयर इज़ नो चार्ज, नो करंट इन दिस वायर. तो अब हम क्या करते हैं, अर्थिंग क्यों की जाती है कि अगर बाय चांस कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें करंट आ जाते हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ बीइंग इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो उससे बचने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं. ग्राउंडिंग या अर्थिंग करने का बेसिकली मीन क्या होता है कि ग्राउंड करना, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक है. अगर नेगेटिव पोटेंशियल है ग्राउंड में, तो वो क्या करेगा, अगर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको तो रिपेल ही करेगा. बट यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड चार्ज था, नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर लेगा, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा. तो जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल है वो सारा कहाँ चला जाएगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा. That means due to this earthing, now the sphere has only negative charge which is on the left hand side of the sphere. और ये भी चार्ज किस वजह से है, because of this glass rod. जब तक ग्लास रोड हमारे पास यहाँ पर इसके पास होगी, तब तक ये चार्ज हमारा स्टे करेगा. Now let us suppose I remove this glass rod. ठीक है, हमने क्या किया, ग्लास रोड को रिमूव कर दिया. अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज पहले हमारे पास कहाँ पे था, सिर्फ इसके लेफ्ट फेस पे था, लेकिन रिमूवल की वजह से ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट मीन्स इनिशियली विच आई कंसिडर्ड एज ए अनचार्ज मेटालिक स्फीयर, नाउ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन दिस मेटालिक स्फीयर बिकम्स ए चार्ज मेटालिक स्फीयर.
तो अब आप देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, कुछ भी हमने कांटेक्ट नहीं किया था, कुछ डिस्टेंस पे था, बट स्टिल डिस्टेंस पे भी इसने क्या किया है, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमने ये एक स्फीयर को लेके एक्सप्लेन किया है। सेम वे में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ वी हैव टू स्फीयर्स, उस केस में क्या होगा। देखो अब मैंने क्या किया है, टू स्फीयर्स लिए हैं ऐसे, ए एंड बी अनचार्ज स्फीयर्स हैं ये इनिशियली। अब मैं क्या करती हूँ, ए एंड बी के पास सेम वे में जैसे फर्स्ट केस में ग्लास रोड को पास लेके गई थी, ऐसे यहाँ पे मैं ग्लास रोड को इसके पास लेकर जाती हूँ। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फीयर ए, इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। इसकी राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस जो स्फीयर बी है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और इसकी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके इस एंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड देयर इज ए रोड क्लोज टू इट। अब जैसे फर्स्ट केस में किया था, अब इसकी क्या कर देते हैं, अगर हम इसकी अर्थिंग करना चाहते हैं तो उसमें देखते हैं कि अर्थिंग करने से क्या होगा हमारे पास। देखो ये हमारे पास बॉल्स थी ए एंड बी, तो एक केस तो ये है, अब डिफरेंट बॉल्स है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वे में अर्थिंग करनी पड़ेगी। कि किसको अर्थ करते हैं, तो जिस भी बॉल को आप अर्थ करोगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ज है वो फ्लो हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज हमारा बॉल पर ही रहेगा, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे अर्थ पे चला जाएगा। सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं, अर्थिंग तो हमारे लिए इजी थी अगर हमने एक स्फीयर कंसीडर किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे अगर दो स्फीयर्स कंसीडर करते हैं, राइट नाउ दे आर अटैच टू ईच अदर, बट अगर हम इनको सेपरेट कर देते हैं, दोनों को सेपरेट करेंगे, बट डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस हमारे पास कम ही होना चाहिए, तभी चार्जेस रहेंगे। एंड हमारे पास ग्लास रोड भी है, तब भी आपके पास जो चार्जेस हैं वो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस आप यहाँ पे ज़्यादा कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो ये ग्लास रोड का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इंडक्शन तभी पॉसिबल होगी इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज़ स्मॉल। ज़्यादा डिस्टेंस पे चार्ज का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि अगर इस ग्लास रोड को हम रिमूव कर देते हैं, अब देखते हैं कि क्या फिनोमिना होगा। अगर ये ग्लास रोड हमारी रिमूव हो गई तो हमारे चार्जेस चेंज हो जाएंगे। ये ए है, ये हमारे पास बी है। अब क्या हो जाएगा, जब रिमूव हो जाएगी ग्लास रोड तो इसका मतलब क्या है, अब ये मुझे दिख रहा है दैट स्फीयर ए हैज़ नेगेटिव चार्ज, बी हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये साइड्स तो खत्म हो जाएंगी, बट इनके इनर साइड्स पे चार्जेस रहेंगे, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर भी शो किए थे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर इनको मैं और भी दूर ले जाती हूँ, एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्जेस का, ठीक है। तो अगेन सेम केस आ गया हमारे पास कि हमने क्या लिया था, अनचार्ज्ड बॉडी ली थी, बट बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वी मेक देम एज अ चार्ज बॉडीज। तो कंडक्शन एंड इंडक्शन में यही मेन डिफरेंस होता है कि कंडक्शन में क्या होता है, देयर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, ओनली देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, बट इन केस ऑफ इंडक्शन देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। सेकेंड थिंग की क्या बात करते हैं, अगर हम कंडक्शन की बात कर रहे थे, कंडक्शन में क्या था, देयर इज ए लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क फंक्शन। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था, द बॉडी विच हैज़ लोअर वर्क फंक्शन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर बॉडी विच हैज़ अ मोर वर्क फंक्शन। तो उससे क्या होता था, वन बॉडी विल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर बॉडी विल गेन इलेक्ट्रॉन। वो अलग बात है, जो नंबर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बट we have to say that there is a loss and gain of electrons. But in case of induction, there is only a transfer of electrons or transfer of charge.
there is no loss or gain of electron. So this is very important difference between the concept of conduction and induction. तो हमने ये देखा कि चार्जेस कैसे हमारे पास ट्रांसफर होते हैं. अब आपको ये पता है कि ये एक्चुअली में लॉस गेन ट्रांसफर ये किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है. तो जब ये ट्रांसफर लॉस या गेन होता है तो अब हमें चेक करना है क्या इलेक्ट्रॉन्स का मास का भी ट्रांसफर होता है, मास भी चेंज होता है. तो यस, द आंसर क्या है इसका, यस है. मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा. वो क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 kg. ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है, दैट मीन्स उसमें इतना मास लॉस हुआ. ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज इट्स पावर इज -31, बट कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना. सेम किसी और एटम ने क्या किया है, इसको गेन किया है, तो उसका मास क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा. दैट मीन्स जो मासेस है, मासेस पर भी इफेक्ट पड़ता है. मासेस भी क्या है, स्लाइटली इंक्रीज और स्लाइटली डिक्रीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन से भी आप चार्जिंग कर सकते हो. तो अब आप एक उससे आप फिक्स नहीं हो कि ऐसा नहीं है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है. कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट्स कुछ डिस्टेंस पे है बट डिस्टेंस शुड बी स्मॉल, तभी आपके पास चार्ज का ट्रांसफर होगा. और ये जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, ये अभी हम इसके लिए अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी आपको बताऊंगी कि अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उससे कैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक आपको मैंने बोला था दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. देखो, सबसे पहले क्वांटाइजेशन वर्ड किससे आया है, क्वांटा से आया है. ठीक है. क्वांटा का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास फोटोन से रिलेटेड होता है. जो एनर्जी होती है फोटोन की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटा, और वी कैन से डिस्क्रीट यूनिट्स. क्वांटा को हम डिस्क्रीट यूनिट्स भी बोलते हैं. राइट. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. तो अब हम इसमें सीखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं. कोई लिमिट है कि ऐसे जितने मर्जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अ बॉडी हैज़ 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसमें बताओ कि लेट अस सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 5.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. तो क्या ये 5.6 पॉसिबल है, क्या ये 4 पॉसिबल है. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं. कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास फ्री चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं यूनिट ऑफ अ चार्ज का. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ये इंटीगर की फॉर्म में होगा. दैट मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस. इन बिटवीन इंटीगर्स देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसे फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आया है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हमेशा कैसे होती है, पैकेट्स ऑफ क्वांटा में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास. इसीलिए हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी कैसे होता है, इंटीग्रल टर्म्स में होता है. तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है दैट Q इज इक्वल्स टू NE, where Q is the charge, N is integral value, it can be 0 1 2 3 both positive and negative, and E is the electronic charge. इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट चार्ज विद द हेल्प ऑफ इट. एंड इफ चार्ज इज गिवन देन यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि ये हमारे पास क्या होता है. नाउ लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखो, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्व करना, या फिर टू रिमेन कांस्टेंट, टू रिमेन फिक्स.
कि जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कंजर्वेशन की थ्योरम्स पढ़ी होंगी, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है कि मास को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एनर्जी के साथ होता है और सेम ही चार्ज के साथ होता है कि चार्ज भी इट इज़ नाइदर क्रिएटेड एंड नो डिस्ट्रॉयड। हम इसमें ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे ये हम कैसे बोल रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, out of which electron is negatively charged, proton is positively charged and neutron is neutral. तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रॉन की, राइट, सो इनिशियली न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, देयर इज 0 चार्ज, न्यूट्रल है ये। बट अगर मैं ये बोलती हूँ कि न्यूट्रॉन को मैंने स्प्लिट किया है किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, एक रिएक्शन मैंने किया कि रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो न्यूट्रॉन है दैट विल चेंजेस इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हो कि पहले न्यूट्रॉन था, इसमें इससे क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, फिर इससे क्या बना, प्रोटॉन बना, प्रोटॉन का भी कुछ चार्ज होता है। दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन यू आर क्रिएटिंग ए चार्ज। तो जो हमने अभी ऊपर बोला है इट इज नाइदर क्रिएटेड, तो ये तो गलत बात हो गई, हमने तो क्रिएट करके दिखा दिया। लेकिन अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -e, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e, दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर से आंसर क्या दे रहे हैं मुझे, 0 दे रहे हैं। दैट मीन्स अब आप ये बोल सकते हो कि क्रिएशन हो चाहे डिस्ट्रॉइंग हो, कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली if the charge remains same before creation and after creation, that means it is a conservation of charge. ये नहीं सोचना आपने कि क्रिएट हम कर ही नहीं सकते हैं, हम इस वे में क्रिएट कर रहे हैं कि उससे भी जो आंसर आ रहा है अल्टीमेटली वो सेम आता है बिफोर क्रिएशन। तो हमने ओवरऑल तो कुछ नहीं किया ना, तो चार्ज क्या रहा है इसमें, कांस्टेंट रहा है, चार्ज हमारे पास कंजर्व्ड रहा है। अब कुछ वेल डिफाइंड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल आता है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का। ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक गामा रे फोटोन लेते हैं, गामा रे फोटोन लिया है, जो गामा रे फोटोन है ये स्प्लिट अप होता है पेयर्स में, यहाँ पे नेम लिखा है ना पेयर, मतलब पेयर में ये डिवाइड होता है। पेयर में कैसे डिवाइड होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन में डिवाइड होता है प्लस एक ये हमारे पास डिवाइड होता है पॉजिट्रोनियम में। ठीक है, तो अब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पॉजिट्रोनियम क्या होता है। जो पॉजिट्रोनियम है ना, ये कुछ नई चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, आपने पार्टिकल फिजिक्स में ये आती है चीज कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ उनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं, राइट। एंटी पार्टिकल होने का मतलब क्या है कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज -e, तो एंटी पार्टिकल के पास चार्ज कितना होगा इसका, +e हो जाएगा। दोनों कैंसिल करके आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। और जो हमारे पास फोटोन होता है, फोटोन या फिर जो गामा रे होती है उसके पास चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ है, चार्ज की कंजर्वेशन हुई है। या अगर हम सिंपल वे में समझे, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास इनिशियली आई हैव अ 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसमें मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है 15 कूलम्ब ऑफ चार्ज में और एक -5 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। हो क्या रहा है, 10 से 15 होना, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्रिएशन कर दी। 10 से 5 होने में मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रॉइंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर बैलेंस है कि क्रिएशन भी सेम हो रही है, डिस्ट्रॉइंग भी सेम हो रही है, दैट मीन्स देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मास और एनर्जी कंजर्व होती है वैसे ही चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। अब आप चाहे उसको क्रिएट करो चाहे डिस्ट्रॉय करो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो आपका सेम आना चाहिए, विच इज बिफोर द रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. So in this video, today we'll discuss 3 main topics. First one is how charging takes place by induction. Second is quantization of charge, and third one is the conservation of charge.
And in my next video, I am going to discuss the main topic, that is Coulomb's force. जो हम अभी तक चार्जेस के बारे में पढ़ते आ रहे थे कि चार्जेस क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस फोर्स के बारे में डिस्कशन करूंगी कि कूलम फोर्स क्या होती है, उसकी वेक्टर नोटेशन क्या होती है. So if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.